जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को जख्म दिया जिसे कभी भूला नहीं पाएगा पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 25 घंटे बाद आज तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर के एक्शन के एक एक पहलू के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सेना ने साफ कर दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के कैंप को तबाह कर दिया गया। पहलगाम हमले में किस क्रूरता से 26 लोगों को मारा गया था, इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। आतंकवादियों की कुल 9 ठिकानों पर हमला किया गया था। मारे गए आतंकवादियों में कंधार हाईजैक, पुलवामा अटैक में शामिल बड़े आतंकी चेहरे भी शामिल थे। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई के बाद ड्रोन और मिसाइल से सैनिक ठिकानों पर हमले करने की कोशिश की। सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान के एक भी टारगेट को सेना ने सक्सेस नहीं होने दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इस कार्रवाई में पाकिस्तान सेना के 35 से 40 सैनिक और अफसर भी मारे गए। पाकिस्तान भारत के एक्शन से इस कदर घबरा गया, बौखला गया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद कॉल करके सीज फायर की पहल की। 3:30 बजे कॉल की गई थी। एयर मार्शल भारती ने जानकारी देते हुए कहा कि 10 मई को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कॉल किया। इसके बाद सीज फायर पर सहमति बनी। दोनों देशों के डीजीएमओ की अगली बातचीत 12 मई को होगी। सेना ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान फिर से सीज फायर का उल्लंघन करता है तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो डीजीएमओ लेवल की इस बैठक में दरअसल इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है, एक बार पहले सुनिए आप भी। There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous. But as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. The precise images of these engagements on that fateful and historical night have already been showcased during the first press statement on the 7th of May that was helmed by our Foreign Secretary. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed, that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. तो बहुत एक तरह से स्ट्रांग मैसेज भी है, लेकिन सोचिए कि भारतीय सेना का पेनिट्रेशन किस लेवल पर पाकिस्तान में था, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया था। सीज फायर पर सेना ने पूरी जानकारी दी है, जरा वो भी सुनिए। Disappointingly, and must I add,
Expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front through last night and in the early hours of the morning today. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. मेरा इसमें सिर्फ एक ही जवाब है आपके लिए कि हमने अपनी कार्रवाई करी। हमने उसके बाद मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की। लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूं। हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है। और इस सिचुएशन में भारतीय सेना जिस तरीके से पहुंची थी लाहौर या उसके अंदर तक, आप सोचिए कि इन बातों को बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया क्योंकि सेना की अपनी रणनीति होती है, लेकिन पाकिस्तान को जो हार्म पहुंचा है उसको इंडिकेट कर दिया गया। मेरे साथ जो मेहमान इस वक्त जुड़े हैं, ज़रा मैं परिचय करवाता हूं। मेरे साथ ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान साहब इस वक्त मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशु सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं और दरअसल रजनीश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है। शुरुआत मैं करता हूं रजनीश, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें और निकल कर आई हैं, जरा ये बताइए। और यहां से सेना का जो मनोबल है या फिर कहा जाए कि भारतीय सरकार की जो रणनीति है, चूंकि इस बात को लेकर भी इंडिकेट किया गया कि 12 तारीख को जो बातचीत होनी है वो तो होगी, लेकिन आज क्या करता है पाकिस्तान, सबसे पहले यह तय होगा। उसकी आज अगर दोबारा उस तरीके से हरकत करता है तो उसके बाद की रणनीति फिर तय होगी। बिल्कुल, देखिए संजय, जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस चला इसमें एक एक बात स्ट्रेटेजिकली बताई गई। डीजीएमओ मौजूद थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन, और सभी ने अपनी अपनी भूमिका बिल्कुल साफ तरीके से बताया कि कैसे ये सब कुछ प्लान हुआ, पहलगाम के बाद कैसे हुआ। उन्होंने बाकायदा दिखाया जिसको लेकर, जिस टेरर कैंप को लेकर, जो अटैक्स को लेकर, जो बेस कैंप को अटैक को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से किस बेस पर उन्होंने हमला किया, कौन किसकी पहले क्या स्थिति थी, आज की तारीख में उसकी क्या स्थिति है। खास करके इसमें पहली बार उन्होंने नंबर्स बताए कि देखिए जो उस तरफ कैजुअलिटी हुई है अगर आर्म फोर्सेस की, तो उसकी संख्या 35 से 40 है, जो आगे भी इस पर एनालिसिस की जाएगी। और ये बात भी उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से कही डीजीएमओ ने कि हमारी मंशा कभी भी टारगेट करने की मिलिट्री बेस को नहीं थी, मिलिट्री को नहीं थी, सिविलियंस को नहीं थी। हमने टेररिस्ट बेस को वहां अटैक किया था और बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया कि हमने टेररिस्ट बेस को अटैक किया था। उन लोगों ने जिस तरीके से वेव्स ऑफ ड्रोन्स टर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया कि वेव्स ऑफ ड्रोन्स उन लोगों ने शुरू किया हमारे देश के बॉर्डर्स में इन कराना, और उसके बाद हमें रिटेलिएट करना पड़ा और हम लोगों ने भी बहुत स्ट्रांगली रिटेलिएट किया। नेवी ने कहा कि हम लोग बस यही कहना चाहेंगे कि हम पूरी तरह से हमेशा से तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि अब जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं उस समय भी आप इसे मान सकते हैं कि मेरी जो सेना है, जो फोर्सेज हैं बॉर्डर्स पे, वो बिल्कुल सजग है, अवेयर है। ऐसा नहीं कि कल हमारी बात हुई और उसके बाद वायलेशन ऑफ सीज फायर हुआ तो हम लोगों ने समझ लिया सब कुछ ठीक है, और कल जब दोपहर में फिर से बात होगी डीजीएमओ से तो आगे के तमाम परमिटेशंस और कम्युनिकेशंस पर बात होनी है। एक चीज और बताइए, ये जो कम्युनिकेशंस हुआ है पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से दोपहर 3:30 बजे जो कॉल की गई थी, उसमें क्या बातें हुई थी? क्या यह इंडिकेशन था कि भारत की आक्रामक शैली के बाद पाकिस्तान समझ गया था, जिसके बाद खुद से इनिशिएट पहल की गई?
बिल्कुल संजय, देखिए कल सुबह पहले डीजीएमओ को एक हॉटलाइन से मैसेज आया जिसमें ये बताया गया कि डीजीएमओ पाकिस्तान बात करना चाहते हैं भारत के डीजीएमओ से। हाँ। क्या वो इंटरेस्टेड हैं बात करने में? हाँ। उसके बाद तमाम ऑप्शंस को चेक किया गया और फिर डीजीएमओ ने रिप्लाई किया कि ठीक है, हम दोपहर में बात करेंगे और 3:30 बजे के आसपास। तो ये जो इवेंट्स है ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर आप देखेंगे संजय, तो बखूबी बातें समझ में आती है कि किस तरह से पाकिस्तान जो भारत की तरफ से जिस रिटेलिएट किया गया परसों रात में, उसके बाद उन्हें लगने लगा। और जो बेस कैंप्स हमें दिखाए गए, यहाँ पर बहुत सारे टारगेट्स दिखाए गए, रनवेज दिखाए गए, इनके जो वेपन्स के गोडाउन्स हैं वहां दिखाए गए, कहां टारगेट किया है भारत ने, और शायद इसने पाकिस्तान को बिल्कुल सही। मैं आपके पास दोबारा आता हूं रजनीश। ब्रिगेडियर धीमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। धीमान साहब, आपने भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। जाहिर सी बात है कि अभी भी सेना के मन में वो ज्वाला है कि अगर शायद थोड़ा और मौका मिलता तो पाकिस्तान का इस बार हिसाब किताब बराबर हो जाता। लेकिन फिर भी कंधार, पुलवामा और कई अटैक को लेकर जितने जिंदा आतंकवादी थे उनको जहन्नुम भेज दिया गया है। पूरे पीसी के बाद, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हमारी स्ट्रेटजी थी, हमारी तैयारी थी और हमने जितना नुकसान पाकिस्तान का किया है, इसको क्या कहा जाएगा, किस लेवल पर कहा जाएगा और इससे क्या सबक पाकिस्तान सीखेगा? देखिए, सबक पाकिस्तान क्या सीख रहा है ये क्वाइट एविडेंट है। क्योंकि कल जब सुबह आपकी ब्रह्मोस मिसाइल्स ने पाकिस्तान के बेसिस पे हमला किया है तो उस समय पाकिस्तान भागता हुआ अमेरिका की शरण में गया है कि देखिए हमें बचाइए। ये उसके बाद हालांकि अमेरिका की तरफ से पहले भी स्टेटमेंट्स आ रही थी कि हम बात कर रहे हैं, मीडिएशन करेंगे या फैसिलिटेशन करेंगे। भारत ने मीडिएशन को तो नकार दिया, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, क्योंकि वो हम नहीं करेंगे। तो परंतु उन्होंने अपना दबाव जारी रखा, अपनी बातचीत जारी रखी और उसके ऊपर कवर अप करने के लिए आपने देखा कल उनके वाइस प्रेसिडेंट का बयान आता है कि हमें इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं डी एस्केलेशन करिए। तो वो एक किस्म का कवर अप था कि लोगों को पता ना चले कि कुछ बात चल रही है। और जब पाकिस्तान के ऊपर भीषण हमला होता है ब्रह्मोस का, जैसे उन्होंने खैर आपके जो डीजी एयर ऑप्स थे उन्होंने ब्रह्मोस का नाम नहीं लिया, पर उन्होंने आपको फोटोग्राफ भी दिखाई और बोला कि ऐसी अनएक्सेप्टेबल डैमेजेस ऑलरेडी कर दी गई हैं रहीम यार खान में, चकलाला में, फिर उसके बाद अपना से पीओजेके के अंदर इस किस्म की जो इश्यूज है तो वो हमें पता है ऑलरेडी। तो उससे ये साफ पता लगता है कि मोराल में कोई कमी नहीं है, तैयारी इनकी पूरी है। और फिर भी इन द रियलम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसलिए इस वक्त कोई भी किसी किस्म की भी ऑपरेशनल या टैक्टिकल डिटेल्स उन्होंने नहीं डिस्क्लोज की है, विच इज द राइट थिंग टू डू। कल को ऑपरेशन खत्म हो जाता है, मामला सुधर जाता है, पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर देता है, उस वक्त ये सवाल पूछने का टाइम है, उस वक्त पूछा जाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक करिए, जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं वो पूछिए और क्लैरिफाई करिए। नहीं, वो तो बातें सही है सर, लेकिन सवाल यही है ना कि जिस नियत के साथ पाकिस्तान, चूंकि इसके पहले भी आप लोगों ने तो पूरी सब कुछ देखा है, इसके पहले भी हम भरोसा करने की बात करते हैं, वो बार बार इसी तरीके से दोहरा रंग दिखाता है, फिर उसके बाद 2-4 सालों बाद उसका वही तरीका शुरू हो जाता है। अच्छी बात ये इस पूरे इवेंट में घटी है कि जितने इस बार, चूंकि सेना ने भी कहा कि हमने वहां पर अटैक किया है जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द होगा। मैं आता हूं सर आपके पास। हिमांशु सिंह जी, जरा ये बताइए, ये जो बहावलपुर है, मुरीद की है, क्या वाकई में भारतीय सेना ने जिस स्ट्रेटेजी के साथ और जो एकदम ऑब्जेक्ट साधे तरीके से निशाना साधा, ये वाकई में पाकिस्तान को बहुत गहरा जख्म दे जाएगा जो भारतीय सेना कह रही है? जी बिल्कुल, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुना हो तो मुझे एक चीज याद आई है। पहले जमाने में टेलीग्राम चलते थे, हाँ, जहां पे कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा संदेश देने की कोशिश की जाती थी, वही आज डीजीएमओ के द्वारा मैसेज देने की कोशिश की गई है। हाँ। कि हम शब्द और गोली व्यर्थ नहीं करते हैं, हमें गोले और गोलियों की गर्जना से गौरवान्वित होना आता है। हाँ। चाहे बहावलपुर हो, चाहे मुरीद के हो, वो नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। अगर आज आपने ब्रह्मोस का सुबह से आप लोग लाइव कर रहे हैं, आपने देखा होगा उसकी मारक क्षमता कितनी सटीक है और रेडार उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है और 1 मीटर तक सटीकता से वो जाती है। तो अगर हम देखें जो जिन आधुनिक हथियारों का हमने उपयोग किया है, और हम तो बहुत खुलेआम बता रहे हैं जी, हमने ये अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किया था, ये हमारे टारगेट थे और एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन हमने वो सारे टारगेट अचीव कर लिए हैं। तो भारत तो ये बहुत क्लियर कर रहा है कि बहावलपुर मुरीद के में पाकिस्तानी सेना को बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है और ये भी हो सकता है कि हम एक
10 मारे और 1 बताएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। हम तो कहीं पे भी हम ये मान के चलेंगे हम बहुत सक्षम हैं और हमने जवाब बिल्कुल जरूरत के हिसाब से कब कहां कैसे देना है इसका निर्णय लेके दिया है। नहीं, मान के चलेंगे क्या है, ये तो सबूत एक तरह से है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बातों से जो रात में पीसी उन्होंने की थी, समझ में आ रहा था कि वो अभी भी हवा में उड़ रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि ये जंग जीत ली है। हालांकि वहां के लोगों का, वहां के जो नई जनरेशन है, पुरानी जनरेशन, उनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो कहानी उल्टी बताई जाती है, जितनी जंगें हम हारे हैं उनको बताया जाता है जीता गया, जब बाद में हम इतिहास आकर पढ़ते तो पता चलता कि हम हारे हैं। अब वही कहानी दोहराने की कोशिश की जा रही है। धीमान साहब जरा ये बताइए, आज तो इंतजार अभी है, अभी तक कोई छिटपुट कोई घटना सामने नहीं आई है, क्या ये जो कल की स्थिति थी शाम की, ये कम्युनिकेशन एरर था या किस बात को लेकर था? भारतीय सेना ने यह भी इंडिकेट किया कि उनकी तरफ से दरअसल सेना की यूनिट भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी ताकि हमारे जवानों को नुकसान पहुंचा सके। तो अगर ये रवैया, ये चरित्र दिखाई दे रहा है, तो फिर हम कैसे ट्रस्ट करके आगे बढ़े? देखिए, पाकिस्तान के अंदर सत्ता में कौन है ये अभी तक क्लियर नहीं है। इज इट द मिलिट्री लीडरशिप, इट इज द सिविलियन लीडरशिप, या इमरान खान साहब जेल में बैठ के चला रहे हैं? सबके अपने अपने पाइज हैं, सब अपनी जगह पे इफेक्टिव हैं। परंतु कल का जो सीज फायर वायलेशन है, मैं उसको इसको उसमें कम अहमियत देता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज से कोई 12-14 दिन पहले, 2 हफ्ता पहले, पाकिस्तान के जो लोअर लेवल और मिडिल रैंक के बहुत सारे ऑफिसर्स ने रेजिग्नेशन लेटर दिया था। उनको थ्रेटन किया गया कि आप इसको विड्रॉ करिए, नहीं तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी। डिसिप्लिनरी कार्रवाई मींस आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो वो लोग अभी भी आर्मी में थे, वो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं। हो सकता है कि वो लोग थे जो यूनिट कमांड कर रहे हैं, फायरिंग की जिम्मेवारी उनके पास है एट लोअर लेवल, बिकॉज दे आर द वन जो फायरिंग। तो उन्होंने शायद इसको मानने से इनकार किया हो या कोई अपनी रंजिश दिखाई हो। और अब चूंकि ये एक इंटरनल मामला है, जो एक प्रोफेशनल आर्मी या एक देश की फौज के ऊपर एक भट्टा लगता है, तो उसको करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हिंदुस्तान ने हमारे पे मिसाइल अटैक किया है आफ्टर द सीज फायर वाज डिक्लेयर्ड, इसलिए हमने रिटेलिएशन एक्शन किया। नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो सर अभी भी झूठ बोल रहा है ना। पाकिस्तान तो अभी भी झूठ बोल रहा है। अगर वहां के मीडिया को ट्रैक करिए, वहां के नेताओं को ट्रैक करिए, तो एक भी बात उनकी तरफ से सच नहीं है। कल भारतीय सेना ने बाकायदा इस बात को ओपन किया था कि उनकी तरफ से क्या क्या बातें फैलाई जा रही है झूठी। एक सोशल मीडिया जंग, एक डिजिटल जंग छिड़ी गई है। लेकिन आज भी, और आज क्या शाम तक उनके नेताओं का बयान उसी तरीके से है। देखिए, ये एक पाकिस्तान की आर्मी का एक हिस्सा है। ISPR के पास एक लेबोरेटरी है जहां सोशल मीडिया का नैरेटिव बनता है। तो अब चूंकि ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, इसलिए जब बाकी लोग भी बोलते हैं तो उसमें कोई सच नहीं होता, तो हर कोई डिफरेंट किस्म का बयान देता है। और ये नैरेटिव वॉरफेयर भी एक वॉरफेयर का हिस्सा है। तो हमें इसे डरना नहीं है, सिर्फ अपने लोगों को चेताना है कि देखिए, डोंट फॉल फॉर दीज र्यूमर्स। तो ये इतना ही है। बाकी जो अपनी उन्होंने इज्जत बचानी थी, उसके लिए उन्होंने ये एक मिसाइल अटैक का सहारा लिया और जाके बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, सेटिस्फेक्शन लोगों को मिल गया क्या? भारत के लोगों को ये जो सेंटिमेंट बना हुआ था, हमारे 26 लोगों की मौतें हुई थी, कुछ और शहादत भी, 5 की शहादत आज बाकायदा भारतीय सेना ने भी कहा है। क्या पाकिस्तान के इन आतंकी ठिकानों को उड़ाने के बाद, हिमांशु जी, हमने उनके साथ न्याय कर दिया है? क्या हमने वाकई में जो बदला लेना चाहिए था वो हमने ले लिया है या कसर रह गई है? पहली बात तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं जनमानस से? देखिए, हमारी जो सरकार की नीति थी, उनके ऑपरेशन का ध्येय बिल्कुल साफ था कि जहां से ये आतंक की कार्रवाई हो रही है, उनके निशानों का खात्मा करना। ठीक है, और ये किस पैमाने पे किया गया है, वो पैमाना वो खत्म हो गया क्या? मैडम हिमांशु जी, आप लोग डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इसीलिए आप लोग डीप जानते हैं। क्या पाकिस्तान में इस रडार एक्शन के बाद, या 2-3 ठिकाने जो उड़ाए गए, 9 ठिकाने जिनमें 2-3 बड़े जो आतंकवादियों के अड्डे थे, इनको उड़ाने के बाद हम ये मान ले कि हमने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया पूरी तरीके से, दोबारा पाकिस्तान यह हरकत नहीं करेगा, प्रॉक्सी गेम दोबारा नहीं खेलेगा? क्या कश्मीर में फिर से डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश नहीं करेगा? देखिए, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये मेरे परव्यू के बाहर का सवाल है। मैं आपको वही बता सकती हूं जो सरकार ने आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया पे जारी किया है, जिसके हिसाब से उन्होंने 9 जगह पे जो रॉ की इंफॉर्मेशन थी,
एनटीआरओ की इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद में तीनों ही सेनाओं को एंगेज करके बिल्कुल सटीकता से आपको प्रूफ लाके दिए। देखिए सरकार इसीलिए आजकल सोशल मीडिया पे प्रूफ लाके दे रही है क्योंकि हम लोग इस तरह के सवाल करते हैं। और अगर सरकार की तरफ से ये बयान आया है कि हमने उनको ध्वस्त किया, और हम क्या, खुद पाकिस्तानी आके रो रहे हैं कि भाई हमारे तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। खुद देखिए मसूद अजहर की तरफ से चिट्ठी नहीं आई ये कि बात मैं तो बहुत सही है गहरे मैडम, सदमे में हूं, दुख में। हिमांशु जी ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं कहां मान रहा। और भारतीय सेना की कार्रवाई पर हम लोग नहीं, कोई भी यहां पर सबूत नहीं मांगता है। कुछ नेता मांगते हैं, उनका नजरिया, उनकी सोच वो होगी, लेकिन हमें इतना भरोसा है, आप लोग भी डिफेंस में रहे तो हम लोगों को इतना भरोसा है कि जो करेंगे सही करेंगे। लेकिन मैं बार बार ये पूछ रहा कि क्या आतंकवादियों को यहां जो एक्शन हुआ इसके बाद उनका खात्मा मान लिया जाए? क्योंकि हम अभी भरोसा किसी के ऊपर नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर किसी का, कि वाकई में वहां से दूसरा खेप नहीं भेजा जाए, दोबारा लॉन्चिंग पैड नहीं बनाया जाए, दोबारा ट्रेनिंग सेंटर वहां पर नहीं बनाया जाए। ये तो इसका पूरा खेल है, तो इसका पूरा गेम है। तो क्या हमने बदला वाकई में उस लेवल पर लिया है? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जो इनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान था। हाँ, देखिए वो कितना क्लियरली कह रहे थे कि हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मान लिया जाएगा। तो अगर देखिए अब इसमें दो चीजें हैं, शायद मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट भी हो सकती हूं। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने बच्चों को या जो भी इन मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आप ऑलरेडी आतंक की दूसरी फसल मान रहे हो। एग्जैक्टली। और अगर मान लीजिए कि अगर हम इस तरह से हर किसी को जो मदरसे में पढ़ रहा है खत्म करने पे आते हैं तो समूचे पाकिस्तान का विनाश होगा। हाँ। इसीलिए इंटेलिजेंस जो है बहुत ध्यान से कार्रवाई करती है कि जो भी हम करें अपने उस लक्ष्य को पाने में कहीं पे भी इस तरह की हमसे चूक ना हो जाए कि कल को विश्व पटल पर हमको हताशा, निराशा और ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े। नहीं, हमारा नजरिया नहीं था जंग जो देने हैं। ये तो भारतीय सेना और भारत की सरकार बोल रही कि हमारा नजरिया जंग था ही नहीं, हम तो आतंकवादियों के खिलाफ ये जंग था, आप उकसा रहे थे, हमने कार्रवाई जवाबी की है। लेकिन जो आपने कहा कि वहां के रक्षा मंत्री का ये बयान है, डॉक्टर धीमान जरा ये बताइए, ये तो साफ तौर पर दिखाता है कि पूरा पाकिस्तान आतंकवादी देश है। अगर ये नर्सरी, ये पौध तैयार करते जा रहे हैं आतंकवादियों की, तो इनसे क्या उम्मीद की जाएगी आने वाले वक्त में? ये तो बड़ा अच्छा मौका था मुझे लगता है कि फिर इस नर्सरी को खत्म करने का। पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब जो आपने मैडम से किया है, हाँ। थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा। जो पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म करना और साथ में कश्मीर वाला मुद्दा एकदम से साफ करना और पीओजे को वापस लेना, ये हमारा प्राइमरी एम है। अब इस प्राइमरी एम को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज तक क्या होता था कि जैसे ही कोई हमला होता था तो हम आतंकियों को मार देते थे और बड़े खुश होकर बैठ जाते थे कि देखिए हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। मगर वो आतंकी दोबारा आ जाते हैं क्योंकि आतंकी एक्सपेंडेबल हैं, वो आते ही मरने के लिए हैं, उनको 72 हुरे चाहिए और वो अपॉइंटमेंट हम उनकी फिक्स करते थे। और दैट वाज नॉट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। उसके बाद जब आप प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो पहले उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होती है, फिर वो 2-3 साल चुप रहते हैं, फिर मतलब प्रॉब्लम फिर 3 साल बाद वापस आ जाती है, फिर उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक होती है, फिर प्रॉब्लम वापस आ जाती है 4-5 साल के बाद। इस बार ये सोचा गया था नो मोर एंड ऑफ दिस, तो इसको खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए जैसे ही पहलगाम होता है उसके बाद सीसीएस की मीटिंग होती है तो उसमें एक ब्रॉडर इशू लिया जाता है, मकसद रखे जाते हैं, तो मैंने आपको बताए हैं। अब इनको अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपने देखा इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, दैट इज अ वेरी बिग ऑप्शन, मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए गए, उसके बाद फिर इकोनॉमिक मेजर्स लिए गए, फिर काइनेटिक मेजर्स की जब बात आती है। नहीं सर, बिल्कुल सही आपने कहा। मेरे पास समय ब्रेक के लिए जाना पड़ रहा है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ लगातार बने, इसके बाद कंटिन्यू आप इस बात को रखिएगा। लेकिन सर एक सवाल है, सवाल ये है कि देश की जनता अभी भी ये कह रहे कि मास्टरमाइंड का मतलब क्या है। हमें तो जो नाम चाहिए थे वो नाम थे मसूद अजहर के। इनकी डेड बॉडी, इनका जनाजा अगर निकला होता तो हमें खुशी होती, हम मान लेते कि 26 का बदला हो गया। हमें नाम चाहिए थे हाफिज सईद के, जो इतना बड़ा टेररिस्ट नाम बना हुआ है। अगर मुंबई हमले से लेकर अब तक जितनी भूमिका उसकी रही है उसका हिसाब किताब इसी धरती पर भारत की तरफ से उसके साथ किया जाना चाहिए। ये 2-3 नाम अगर हमारे इस हमले के बाद सामने आए होते तो वाकई में हिंदुस्तान की जनता के लिए
बराबर जवाब के तौर पर होता। लेकिन ठीक है जो आप बता रहे हैं। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से यह भी इंडिकेट किया गया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत दोबारा की तो उसका जवाब फ्री हैंड स्टाइल में दिया जाएगा। धन्यवाद।